Good morning, students. Class 8 English Reader, Book Honeydew, Chapter 4, Bin Chaudhry's Lapse of Memory. In our previous video, at the end of the third phase, we saw that after taking the medicine prescribed by Dr. Chanda, Bipin Babu felt somewhat better the next morning. After breakfast, he rang up his office, gave some instructions, and then procured a first-class ticket for Ranchi for the same evening. यानी उसी evening वो रांची के लिए रवाना हो गए. Now moving on to the fourth phase, getting off the train at Ranchi next morning. यानी next morning वो रांची पहुँचे, स्टेशन पे ट्रेन से उतरे. He realized at once that he had never been there before. उन्हें उसी मोमेंट रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे वो कभी पहले नहीं आए. He came out of the station, took a taxi and drove around the town for a while. यानी टाउन में घूमते रहे. He realized that the streets, the buildings, the hotels, the bazaars, the Morabadi Hill, with none of these had he the slightest acquaintance. यानी उनका इनसे कभी परिचय हुआ ही नहीं, उन्होंने इन चीज़ों को कभी देखा ही नहीं. Would a trip to the Hudro Falls help? Now he gave a thought to himself कि मुझे शायद हुड्रो फॉल जाना चाहिए, वहाँ जाके हो सकता है कि मुझे कुछ याद आ जाए. क्योंकि he didn't believe so, but at the same time उन्हें इस चीज़ पे बिलीव नहीं था, बट उसी मोमेंट उन्हें ये फील हुआ कि वो ऐसा कोई चांस मिस नहीं करना चाहते जिसकी वजह से ऐसा फील हो कि उन्होंने किसी तरह की कोशिश नहीं की. Feeling that he had tried enough, so he arranged for a car and left for Hudro in the afternoon. Moving on to next page. At 5 o'clock the same afternoon in Hudro, two Gujarati gentlemen from a group of picnickers, यानी जो वहाँ पिकनिक मना रहे थे, एक ग्रुप था गुजराती जेंटलमैन का, उन्होंने डिस्कवर किया that Bipin Babu was lying unconscious beside a boulder. When he came round, यानी जब वो उन्हें देखने आए, the first thing Bipin Babu said was, यानी जब होश आए बिपिन बाबू को, उन्होंने सबसे पहले कहा I am finished, there is no hope left. उन्हें ऐसा लगा कि अब उनके साथ ऐसा कुछ हो गया है कि उनके पास कोई होप नहीं है. Next morning, Bipin Babu was back in Calcutta. He realized that there was truly no hope for him. Next morning शायद जब उन्होंने आँखें खोली and he was completely conscious, he felt कि अब कुछ नहीं बचा, there is no hope. होप किस बात की? कि उन्हें जो रांची ट्रिप के बारे में जो मिस्ट्री थी उसके बारे में पता करना था. बट नाउ क्योंकि वो कैलकटा में थे तो उन्होंने अपनी सारी होप लूज़ कर दी थी. Soon he would lose everything, his will to work, his confidence, his ability, his balance of mind. उनके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आने लगे कि उनके जो वर्क करने की विल है या उनका कॉन्फिडेंस है, उनकी एबिलिटीज़ है, सब कुछ उनसे लूज़ हो रही हैं. इवन द बैलेंस ऑफ हिज माइंड. Was he going to end up in the asylum at? उन्हें लगा कि क्या मैं इसी तरह हॉस्पिटल में दम तोड़ दूंगा, बीमार ही रहूँगा. बिपिन बाबू couldn't think anymore. वो कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे. Back home, घर आने के बाद he rang up Dr. Chanda and asked him to come over. डॉक्टर को कॉल किया कि प्लीज़ मुझे घर पे देखने आए. Then after the shower he got into bed with an ice bag clamped on his head. बात लेने के बाद वो अपने बेड पे आके लेट गए और जो आइस बैग होता है उसे अपने सर पे रख लिया. Just then the servant brought him a letter which someone had left in the letter box. उनका जो सर्वेंट है वो एक लेटर लेकर आया, किसी ने लेटर बॉक्स में डाला था. It was a greenish envelope with his name in red ink on it. Above the name यानी नाम के ऊपर लिखा था अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल. कॉन्फिडेंशियल यानी जो सीक्रेटिव होता है, किसी से हम शेयर नहीं करते. इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन, मतलब उनकी ऐसी कंडीशन थी, वॉज नॉट फीलिंग वेल, स्टिल बिपिन बाबू हैड अ फीलिंग दैट ही ऑट टू गो थ्रू द लेटर. ऑट टू मतलब उन्हें फील हुआ क्योंकि उन्होंने जो लाइन देखी अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, सो ही कुडंट स्टॉप हिमसेल्फ फ्रॉम ओपनिंग द लेटर. ही टोर ओपन द एनवेलप एंड टुक आउट द लेटर. दिस इज वॉट ही रेड. जैसे उन्होंने लेटर ओपन किया, उसमें क्या देखा? Dear Bipin, I had no idea that affluence would bring about the kind of change in you that it has done. यानी ये जो लेटर जिसने भी लिखा था उसने ये कहा कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे अंदर जो चेंज आया है बिकॉज ऑफ द मनी यू आर हैविंग,
Okay, a financial state of having more money. Was it so difficult for you to help out an old friend? तुम्हारे लिए क्या इतना मुश्किल था अपनी किसी ओल्ड फ्रेंड को हेल्प करना जब उसका लक उसका साथ नहीं दे रहा है? आई हैव नो मनी सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड. जिसने ये लेटर लिखा उसने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं और रिसोर्सेज जो हैं वो भी लिमिटेड हैं. बट वॉट आई हैव इज़ इमेजिनेशन. जो मैंने सोचा, इमेजिन किया, दैट इज़ उसी का एक पार्ट है ऑफ विच आई यूज इन रिट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर. यानी तुम्हारे बिहेवियर में जो चेंजेस आया उसके लिए मैंने जो आइडिया सोची एज अ पनिशमेंट तुम्हारे लिए, उसी का एक पार्ट है ये. वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ. अ नॉवल आई हैव रिटन इज बीइंग कंसिडर्ड बाय अ पब्लिशर. वेल तुम ठीक हो जाओगे. मैंने एक नॉवल लिखी है जो पब्लिशर ने कंसिडर किया है कि वो पब्लिश करेंगे. इफ़ यू लाइक्स इट इनफ, अगर उन्हें पसंद आ गई, it will see me through the next few months. That means अच्छा हो जाएगा उसके साथ. He'll earn good money. Yours चुनीलाल. That means ये जो लेटर है वो किसने लिखा है? चुनीलाल ने. और इस लेटर के अकॉर्डिंग जो इस स्टोरी की एक्चुअल मिस्ट्री है वो समझ में आ रही है कि जब चुनीलाल और विपिन बाबू एक साथ काम करते थे, दैट टाइम ऐसा हुआ कि चुनीलाल को कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हुई और उसने विपिन बाबू से हेल्प मांगी. लेकिन दैट मोमेंट विपिन बाबू को शायद उतना एटीट्यूड था कि उनके पास बहुत पैसा है, उन्होंने चुनीलाल की हेल्प नहीं की थी. और ये जो पूरी स्टोरी क्रिएट हुई कि जहाँ शॉप में वो पर्सन उन्हें मिला था विपिन बाबू को, उसने कहा कि उसने उन्हें रांची में देखा, या जितने भी कैरेक्टर्स स्टोरी में हैं, दीज ऑल वेयर अ पार्ट. एक स्टोरी क्रिएट की गई थी, एक ऐसा माहौल बनाया गया, एनवायरनमेंट. इट वॉज ऑल डन बाय चुनीलाल टू टेक अ रिवेंज. एक तरह से वो विपिन बाबू से बदला ले रहा था कि उसने विपिन बाबू ने उसके डिफ़िकल्ट टाइम में उसकी हेल्प नहीं की. ये देखकर विपिन बाबू बहुत शॉक रह गए. व्हेन डॉक्टर चंदा केम, विपिन बाबू सेड आई एम फाइन. अब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि डॉक्टर चंदा आ गए हैं और अगर ये सच्चाई उन्हें पता चलती है तो विपिन बाबू की बहुत ज़्यादा इंसल्ट होगी. इसलिए विपिन बाबू ने उनसे क्या कहा? आई एम फाइन. इट ऑल केम बैक एज सुन एज आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट रांची. यानी मुझे सब कुछ याद आ गया जैसे ही मैं ट्रेन से रांची में स्टेशन पे उतरा था. डॉक्टर चंदा ने कहा, यूनिक केस, आई शैल सर्टनली राइट अबाउट इट इन अ मेडिकल जर्नल. मतलब बहुत ही यूनिक केस है कि जैसे ही आपको मैंने एडवाइस किया है और आप रांची गए और जैसे ही आप स्टेशन पहुँचे आपको सब कुछ याद आ गया. मैं अपने मेडिकल जर्नल में इस केस के बारे में ज़रूर लिखूँगा. फिर विपिन बाबू ने डॉक्टर से कहा कि जो रीज़न है मैंने आपको कॉल किया है उस वजह से है कि आई हैव अ पेन इन द हिप फ्रॉम अ फॉल आई हैड इन रांची. रांची में जो मैं गिर गया था वहाँ पे, उस वजह से मेरे हिप्स में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है. इफ़ यू कुड प्रिस्क्राइब अ पेन किलर. यानी अपनी इस बात को छुपाने के लिए विपिन बाबू ने बात को घुमाया कि मैंने आपको सिर्फ इस वजह से कॉल किया है कि जो मैं रांची में गिर गया था उस वजह से मेरे हिप में पेन है. सो प्लीज़ प्रिस्क्राइब मी अ पेन किलर. So that was a story, interesting one. We have just 2 more questions left here and some of the back exercises I'll be sharing with you, whichever I find important. So the book exercise you will be doing in the book itself, and these 2 questions you have to complete in your fair notebook. Once again, go through the chapter. If you have any queries regarding the chapter, let me know in the feedback in our WhatsApp group. Till then, thank you class.